نہیں سکتا ہے، آپ کے خاندان میں کوئی اور ایسا کھانا بنا نہیں سکتا ہے، آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں بھائی پورے محلے میں جناب کا کھانا نہیں کوئی بنا سکتا، لیکن شکایت ہے کہ بدتمیز بہت ہے۔ یسوع مسیح سب تعریفیں بھی گنوا رہا ہے لیکن شکایت کر رہا ہے، لیکن مجھ سے مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی، پہلی سی محبت تو نے چھوڑ دی ہے۔ تو عبادت واسطے بھی آنا ہے، تو گیت بھی بڑی زبردست طریقے نال گانا ہے، تو دعا بھی بڑی جوشیلی کرنا ہے، تو ٹائم دی بھی پابندی کرنا، وقت آ کے ساؤنڈ سسٹم آن کرنا، ٹلی کھڑکانا ہے تے ساؤنڈ سسٹم تے خود ہی آ کے شروع ہو جانا، دعا کرنا، پرسش کرنا، تو پھر دوسرے آندے نے۔ لیکن شکایت ہے کہ مسیح نالوں والی محبت نہیں رہی، یہ سب کچھ تے کرن دے آئے تو مسیح نال محبت تیرے دل وچ نہیں رہی۔ یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ افسس کی کلیسیا کو یا کلیسیا کے خادم کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ وہ پہلے سے محبت کیا تھی؟ وہ کیا تھی؟ وہ کیا عمل تھا جو وہ اب نہیں کر رہے، جس سے وہ محبت کی کمی شو ہو رہی ہے؟ 96 عیسوی کا دور ہے اور یہ دوسری نسل چل رہی ہے۔ پہلی نسل گزر چکی ہے جس نے اصل محبت دکھائی تھی، جو اصل محبت کی دعوے دار تھی، وہ گزر گئی ہے۔ اب یہ صرف ان کو فالو کر رہے ہیں، ان کی رسومات کو لے کر آگے چل رہے ہیں۔ محبت وراثت میں نہیں لی ہے، رسمیں وراثت میں لے لی ہے، گانے بجانے کی مہارت وراثت میں لے لی ہے، کلام کو اسٹڈی کرنے کی مہارت وراثت میں لے لی ہے، لیکن محبت کو وراثت میں نہیں لیا، پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے۔ یہاں پر پہلی محبت کو یاد دلایا جا رہا ہے، دوسری نسل کو یاد کرایا جا رہا ہے کہ تو نے پہلی سی محبت کو چھوڑ دی ہے۔ یہی ایک واقعہ نہیں جہاں پر دوسری نسل کو دہرائی کروائی جا رہی ہے، اس سے پہلے استثناء کی جب ہم کتاب پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی پہلی نسل ساری ختم ہو گئی تھی اور دوسری نسل کو پھر سے دہرائی کروائی گئی یشوع کے ذریعے سے کہ کیا کیا ہوا تھا، کیا کیا قربانیاں دی گئی تھی، کیسے تم ملک کنعان میں پہنچے تھے۔ پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے، مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تم نے پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے۔ بس خیال کر کہ تو کہاں سے گرا ہے، ایسا گلاں نو سوچ تو پھر پیچھے نو ذہن دوڑا اپنا۔ میرے ماں پیو کی کرتے سی، میرے دادا پردادا میرے جد کی کرتے سی، تے میں کتھے ہاں، کتھے ڈگ پیا میں آ گیا۔ جارج برنارڈ شاہ امریکہ کا صدر، اس نے کہا کہ میں یہ نہیں جانتا کہ میرا دادا کیا تھا، میں یہ سوچتا ہوں کہ آج اس کا پوتا یعنی کہ میں کیا ہوں، میں کیا گیا ہوا ہوں یا پہنچا ہوا ہوں۔ میرے والد پاسٹر ایمانویل مل صاحب، پاسٹر بنیامین صاحب ان کے شاگردوں میں سے ہیں، اور یہاں ARP چرچ میں ہم 1998 سے 2002 تک ARP چرچ میں تعینات رہے۔ ماچھیوال 557 چک میں ہم 85 سے لے کے 88 تک تعینات رہے، اور میلزی میں 89 سے 98 تک ہم وہاں پر ایسے پاسٹر تعینات رہے۔ وہ مجھے یہ کہتے تھے کہ میں تمہیں اس مقام پر دیکھنا چاہتا ہوں جہاں پر یہ نہ کہا جائے کہ وہ دیکھو پاسٹر مل صاحب دا منڈا جا رہا، میں چاہنا وا کہ لوکی تینوں ویکھن تے تیرا عہدہ دلوا کے کہن اے ڈاکٹر پاسٹر کاظم جدون، اے DSP کاظم جدون، اے SP کاظم جدون، اے فلاں سکول دا پرنسپل کاظم جدون دا پیو جا رہا ہے۔ میرے والد یہ چاہتے تھے تاکہ وہ گر نہ جائے اگلی نسل میں جا کر، اگلی پشتوں میں جا کر یہ گر نہ جائے، بلکہ میرے سے بھی اوپر کا مرتبہ حاصل کرے۔ ماں جب اٹھاتی ہے تو بچے کو ایسے اٹھاتی ہے، ایسے اٹھاتے ہیں نا جی، اور اس کا قد جو ہے وہ ماں کے برابر ہوتا ہے۔ ماں کہہ رہی ہوتی ہے جتنے تک میں ویکھنی ہے تمہیں ویکھ، اور باپ جو ہے وہ کندھے کے اوپر اٹھاتا ہے، ایک ٹانگ ادھر ہوتی ہے، اس کو انگلش میں کہتے ہیں اسٹرڈل
पोजीशन, स्ट्रेटल पोजीशन, टांग को इधर और इधर करके बैठना। जैसे कुर्सी का जो बैक साइड होती है वो इधर होती है और हम उल्टा बैठ जाते हैं टांगे इधर उधर करके। स्ट्रेटल पोजीशन, बाप अपने बच्चे को स्ट्रेटल पोजीशन में ऊपर बिठाता है और उसका सर ऊपर को करता है। जितों तक मैं भी नहीं पहुंच सकता तो उतों तक पहुंच, उतों तक भी। माँ क्या सोचती है, मेरा बच्चा आज की खाएगा, और बाप सोचता है कि मेरा बच्चा जब तक मैं जिंदा हूं उਦੋਂ तक नहीं खाएगा। हम सोचें कि आज हम कहां पर गिरे हुए हैं, आज हम अपने माँ बाप को देखें, सोचें, याद कर कि तू कहां से गिरा है, याद कर, पीछे देख, एक बार अपने पिछले दौर को याद कर। असी ड्राइविंग कौन कौन करता है कार में, कार कौन कौन चला सकता है? जो कार चलाता है, आप आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? जब मोड़ काटना हो या इधर उधर देखना हो, साइड वाले शीशे देखते हैं, यानी कि पीछे को देखते हैं। पीछे को देखकर आप आगे बढ़ते हैं। अगर आप पीछे नहीं देखेंगे तो आगे बढ़ते हुए आप नुकसान उठाएंगे। तो याद करना है, पहले पीछे देखना, पिछले दौर में याद करना, पीछे देखना। याद करने का मतलब होता है कि गुजरी हुई बात को देखना, गुजरी हुई बात को सोचना, उसको कहते हैं याद करना। हमारे साथ अक्सर हमारे अजीजों कारब होते हैं, हम उनकी कदर नहीं करते। जब वो गुजर जाते हैं तो फिर हम उनके बारे में सोचते हैं, गौर करते हैं, तदब्बुर करते हैं। फिर वो किसी शायर ने कहा, जब वो रुखसत हुआ तब याद आया। हाले दिल हम भी सुनाते, लेकिन जब वो रुखसत हुआ तब याद आया। हम जब गुजर जाते हैं हमारे अजीज तो फिर हमें याद आता है वो दौर याद आता है, हम ये भी कर सकते थे, वो भी कर सकते थे। याद कर, पिछलियां नूं वेख, पहले पिछलियां दी सोच, पिछलियां दे कारनामे सोच। आज की कलीसियाओं में हमने क्या देखना है, क्या सोचना है? हमने पादरी अब्दुल हक को पढ़ना है, उसकी कुर्बानियों को देखना है। पादरी सुल्तान मोहम्मद पाल को पढ़ना है, उसकी कुर्बानियों को देखना है। और पादरी जो ये राहिब साहब हैं उनको देखना है, हमने उनकी कुर्बानियों को पढ़ना है, अपने पुरखा दिया कुर्बानियां देखना है। जब अकबर, शहनशाह अकबर के दौर में आए थे यहाँ पर, उन्होंने कैसे खिदमत को आगाज किया था। जब तुमर यहाँ पर आया था तो कैसे खिदमत का आगाज किया था, क्या क्या कुर्बानियां दी थी, जिन जिन लोगों ने कैसे कैसे अपनी जानों को कुर्बान करना है, वो याद करेंगे तो हमें आगे बढ़ने के लिए कुछ मिलेगा मवाद कि हमने आगे बढ़ने के लिए करना क्या है, मकसद क्या होना चाहिए कि हम आगे बढ़े। पर याद कर तो तू कहां से गिरा था, पादरी अब्दुल हक ने तुम्हें कहां पहुंचा दिया था, सुल्तान मोहम्मद पाल ने तुम्हें कहां पहुंचा दिया था, और आज तुम इतने इल्म हासिल करने के बाद कहां पर गिरे हुए हो। खुआ का गंदा पानी पी के 100 साल की उम्र पाने सा अज असी महंगे महंगे फिल्टराइज महंगे प्लांटा वाले पानी पी के भी 40 साल तो उत्ते नहीं जाते। याद कर गलती किथे हुई है। असी काले पिलक गोलियां मसाइयां ठोस ठोस के खाने सतह से चीनी सुंगन तो पहले शुगर लग जाती है। याद करके तो कहां से गिरा है, याद करें, अपने दौर को याद करें कि मैं कहां से गिरा। फिर है, और तौबा करके पहले की तरह काम कर, और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। 3 बातें हैं जो खुदावंद यीशु मसीह करने के लिए कह रहा है। एक है याद करना है, अगर अपनी इस्लाह करनी है तो पहले याद कर। अगर तू याद करेगा तो तुझे वजह मिल जाएगी तौबा करने की। अगर तू याद ही नहीं करेगा तो मैं करी गल दी तौबा कर भाई, कोई याद ही नहीं, मैनू गलती की मैं की है, मैं क्या तौबा करा। आप पहले याद करेंगे, जब आप याद करेंगे तो आपको कुछ याद आएगा, अपनी पुरानी गलतियां याद आएंगी, मेरे बड़ों ने क्या किया था, मैंने क्या किया, मुझे आगे क्या करना है। फिर आपने तौबा करनी है, और तौबा करने के बाद पहले की तरह काम करना है। उन्होंने पढ़ के फिर देखना है कि असी उन्होंने जो केड़ा करा आज के दौर के मुताबिक काम कर सकते हैं। और स्पीकर नहीं सी इस्तेमाल करते, अभी जो फिर तो मुनादी करते सन। अज साढ़े कोल व्हाट्सएप है, साढ़े कोल क्यों नहीं मुनादी होंदी, अज असी उन्होंने वांगू क्यों नहीं काम कर रहे, पहले की तरह काम कर, हम वो भी नहीं कर रहे। हम इसका गलत इस्तेमाल जरूर करते हैं। मैं सेमिनरी इस वक्त 12 स्टूडेंट है टोटल पूरे पाकिस्तान से मिले, हर घर में कलीसियाओं को जाके कहता हूं पढ़ो। सेमिनरी करना है मतलब नहीं है कि पादरी बनना है, तुसी रियाजी पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ते हो, उर्दू पढ़ते हो, तुसी सब कुछ बन जाते हो।
सिर्फ समनरी करने वाली तुसी पादरी बनना है, पादरियों का काम है। अच्छे मसीही बनने के लिए समनरी करना जरूरी है। इसराइल के मुल्क में 18 साल से लेकर 21 साल तक हर लड़की हर लड़के को आर्मी की ट्रेनिंग दिलवाई जाती है, लाजमी है, ट्रेनिंग करनी है। भले उसने उसको प्रोफेशनल बनाना है या नहीं बनाना है, उसने लाजमी वो 3 साल अपनी जिंदगी की आर्मी की ट्रेनिंग में गुजारने हैं। हम ये क्यों नहीं खुदा की खिदमत में गुजार सकते? खुदा का इल्म हासिल क्यों नहीं कर सकते? पहले की तरह काम कर, उन्हें मंगो इल्म हासिल कर, उन्हें मंगो खुदा दी मुनादी करने की काबिलियत अपने अंदर पैदा कर। खैमा इज्तिमा के लिए क्या जाहिल लोगों को मुंतखब किया गया था? क्या बे इल्म लिए बुला लेता है? तो आपकी पहले से ट्रेनिंग हुई होगी, आपने समनरी की होगी, आप पहले से माहिर होंगे। और उस रसूल की तरह आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले की तरह काम करें, पहले लोगों की तरह काम करें, याद करें, तौबा करें और पहले की तरह काम करें। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर बड़ी खतरनाक बात होगी, बहुत ज्यादा खतरनाक बात होगी। और वो ये होगी है, अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। चिरागदान क्या जी? चिरागदान क्या है? जोर से, चिरागदान क्या? और अगर हम याद नहीं करेंगे, तौबा नहीं करेंगे, पहले की तरह काम नहीं करेंगे तो वो आएगा और चिरागदान को उसकी जगह से हटा देगा। और तारीख गवाह है कि आज सातों कलीसियाओं के सुराग मिलते हैं, इफिसस की कलीसिया का कोई सुराग नहीं है। वो चिरागदान हटा दिया गया क्योंकि इफिसस की कलीसिया ने तौबा नहीं की थी। आज वहां पर सिर्फ एक छोटा सा गांव है, अलूसैया मुस्लिम गांव है, वहां पर मसीही कलीसिया का नामो निशान। अगर आप याद नहीं करेंगे, तौबा नहीं करेंगे, पहले की तरह अमल नहीं करेंगे तो आपकी कलीसिया का चिराग या चिरागदान अपनी जगह से हटा दिया जाएगा, आपका नामो निशान मिट जाएगा। यहाँ पर कल कोई और आकर कब्जा कर लेगा। खुदावंद अपने कलाम पर बरकत बख्शे।